Okay, Please sure, start, sure. sir. Okay, without wasting time, we are starting exclusive webinar with the expert who has cracked this exam with the flying colors in the last year, PSC when it was held in 2023. He has got the rank of 32. Mind it, it is a rank of 32, top 50 rank it is, and he will be guiding you how to approach this exam, how to do the questions, how what is the scenario, how to fight this exam. He was in the same scenario where you are standing right now, and he is none other than the person, Dr. Vikram. We have got as an expert. He has done his MDS from KGMC from Peru, and he has done the SRship in AIMS and KGMC. So he's the best person. I think in the UP, whoever can guide you, he's the best person to guide you for this UPPSC dental surgeon. And please, this will be the most exclusive webinar. And for this only, you have enrolled this test series. Everybody was asking, like, sir, add us in the test series, add us in the test series. What is the purpose of adding you in the test series if you don't know how to move forward, how to prepare for the exams? So this is the thing that we have brought everything here. And please, we are welcoming Dr. Vikram, none other than one of the greatest person who has got the greatest academic excellence and who is right now enjoying his duty and for which you are going to give this exam. So, Dr. Vikram, please can you introduce yourself a bit with these participants because they would love to like interact with you. Dr. Vikram, the mic is with you. Am I audible, sir, now? Right. Okay. Fine, sir. So thank you so much, sir, for such a such a generous introduction. Sir, I am Dr. Vikram, and everyone, a very happy New Year to all of you. And we should start on a very positive note, discussing about the most awaited and very important examination, which is UPPSC. I am Dr. Vikram. I've done my BDS from Naya Dental Mumbai. My MDS is from KGMC, and my SRship is from KGMC and then AIMS Jodhpur. So today I will be guiding you. My rank in UPPSC 2023-24 was 32 in general category, and I will be guiding you today about the preparation part of UPPSC. It is next to NEET MDS. It has become like so much participant like. So first of all, there is UPSC and then there is UPPSC. So UPSC is Union Public Service Commission, which is a central government job. UPPSC is by UP state government for UP state government job, which is conducted by the body called UP Uttar Pradesh Public Service Commission. So that is examination conducting body. So that's why UPPSC. It is a UP state government job, and if you qualify it, you will be directly posted as a gazetted officer. If you know, gazetted officer means someone who can attest your documents. So it is quite a prestigious job, and there are different aspects of it. First of all, I would say UPPSC as a public service commission, it is one of the most punctual and most prestigious public service commissions in India. It is the pattern and everything in civil services part also. It matches to the Union Public Service Commission, UPSC. So it is very prestigious. And why I stress about UPPSC, why I prefer UPPSC above any other state government state dental exam is UP as a state. I have lived in Mumbai, Lucknow, then I went to Jodhpur, and now again I'm back in UP. So I know all of you, most of you will be from North India, but even from South India itself, UP is a very diverse state, very well connected state. Roadways are awesome. There is air connectivity to various parts of the country. Food is good, atmosphere is good. So it gives you a very good experience for life in UP. So that's why I think there has to be a personally for me, and I guess if you are aware about it, so in that scenario, you will be fascinated about joining state government services in UP state. Secondly, the salary part. The salary, it is 1 lakh around. If you roughly, I will tell you 1 lakh around. And after 8th pay commission, it is going to increase by 25,000 to 30,000 itself. So you can see it is one of those states who gives their dental surgeons a lot of salary at the higher end, which is comparable to Delhi or Haryana. So all other states gives you a bit less of a salary, 70,000, 80,000. That's the thing. And just want to know like where are the postings of UPPSC dental surgeons like because sir ये लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पे पोस्टिंग होता है, इनको अपने सिटी का भी मिल सकता है या फिर आसपास सिटी का मिलता है, लाइक कहाँ मिलता है? रूरल और अर्बन वाला भी एक पार्ट है जो इसमें थोड़ा सा बताइए। रूरल अर्बन में मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में ये जो CHCs होती हैं, ये यूजुअली नगर पंचायत होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ऐसे गांव में दे दिया। गांव बेसिकली सब सेंटर्स एंड PHCs जो होती है वो गांव में होती है। डेंटल सर्जन की पोस्ट जो अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान रहता है, इट इज आइदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो CHC हैं, या फिर 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक कॉन्सेप्ट है यूपी में, जहाँ पे 100 बेड के हॉस्पिटल्स होते हैं, विच आर वेरी वेल इक्विप्ड। वहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, विच विल बी वेरी वेल कनेक्टेड टू एनी जो नियर बाय जो भी बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उससे आप वेल कनेक्टेड रहोगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा
ये ऐसा नहीं होगा कि आप कच्चे पगडंडियों से जा रहे हो पोस्टिंग के लिए या एकदम ऊपर खाबर सड़क है। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। पहले तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी फटाफट एग्जाम लेती है, इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। एक तो ये है, प्लस पोस्टिंग्स जो स्वास्थ्य मंत्रालय है सर हम लोगों का, वो पोस्टिंग वगैरह की चीजों में भी बहुत ही आपको क्लैरिटी के साथ चीजें करती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। आप मेल करो, आपको मेल का रिस्पॉन्स आएगा। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब इट इज नॉट समथिंग कि अरे गवर्नमेंट है सोई हुई है, नो। इट विल गिव यू, आप एग्जाम क्लियर करो, आपको मजा आ जाएगा। क्या बीडीएस एमडीएस सारे एलिजिबल है क्या, लाइक सर एक सारे बार थोड़ा सा। यस सर, बीडीएस एमडीएस आप आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है, आप डिग्री सर्टिफिकेट आपकी हाँ सर। इंटर्नशिप कंप्लीशन और आपकी बीडीएस डिग्री कंप्लीट हुई रहनी चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन ठीक है और सर। ये सब चीजों के लिए अभी आप फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा, हाँ आप सर, सर फॉर्म ये फिल। सवाल। हालांकि उन्होंने थोड़ी एम्बिग्यूटी रखी है वहां पे, उन्होंने क्लियरली, कई बार ऐसा होता है सर कि जब वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने, मुझे एमपी का जहां तक याद है, एमपी में जब वो कॉलम फिल करवाते हैं तो वो लिखते हैं कि एमपी स्टेट डेंटल रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करिए। राइट राइट। यहाँ जैसे यूपी में ऐसा नहीं है, तो उन्होंने थोड़ी एम्बिग्यूटी छोड़ी है। बट मैं ये कहूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर, अगर आपसे वो 5,000 का फॉर्म भरा रहे होते तो समझ में आ रहा था सर। ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, सीटें इतनी ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान है अगर आप फॉर्म फिल करो। आप फॉर्म फिल करो, ये सोच के फिल करो कि आप जो है आप एग्जाम में बैठ रहे हो, नितिन सर ने जैसे गाइड किया हुआ है, आप मेल करो। अगर आप आउटसाइडर हो, देर आर चांसेस, देखिए लंबा प्रोसेस है, 5-6 महीने लगते हैं पूरा चीज होने में, डेवलप होता है, तो चांसेस दे माइट कंसिडर इट। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे कई बार ऐसा हुआ, जब मैं पीजी में था तो 2000 वो लास्ट एग्जाम की बात है, उस टाइम ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीजी की बहुत ये चल रही थी कि क्या होगा क्या होगा। फाइनली उन्होंने पिछली बार जो एग्जाम हुई थी, उन्होंने कंसिडर किया, जो प्रमुख सचिव है, थर्ड ईयर एग्जाम वालों को एग्जाम देके आप आके ज्वाइन करो, सेकंड ईयर वालों को भी उन्होंने इस तरह से लीवे दिया। तो दे आर रिस्पॉन्सिव अबाउट द कंसर्न्स द स्टूडेंट्स आर हैविंग। सो आप फॉर्म फिल करो, आप बिल्कुल फॉर्म फिल करो, आप प्रिपेयर करो, आपका फायदा ही है, मैं यही कहूंगा। यूपी की कोई भी एग्जाम होगी, यूपी का साइज एंड जो पॉपुलेशन है सर, इट इज लाइक एक अपने आप में कंट्री है, तो ये टफ एग्जाम है। अगर आप देखो तो जो सक्सेस रेट है, फाइनल सक्सेस रेट अगर मैं बताऊं तो इट इज अराउंड 1.5%। इट इज टफ, वो तो है। बट इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज क्या है यूपी के साथ, यूपी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी एंड ये डेंटल सर्जन में भी, इनके साथ क्या है कि जो डेंटल की मैं बात करूं, तो डेंटल में जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं वो इतने सिंपल होते हैं, वो आपको कहीं पे भी, जैसे आप अनलाइक हरियाणा, आपको अगर याद हो, या नीट जैसा पेपर होता है, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दे रहे हैं। यूपी पीएससी ने 2019 और 23 में ऐसा पैटर्न फॉलो किया है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, हमें दूसरे स्टेट का नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे है, अगर इन्होंने 2 साल एक ही तरह का पैटर्न रखा है, तो हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि दे हैव मेड अप अ माइंड कि हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन बेसिकली रहते हैं सिंपल। बस ये रहता है कि जो वो किस तरह के कैंडिडेट चार हैं, वो चार हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास नॉलेज का एक ब्रॉड बेस हो, आपका बेस ऑफ नॉलेज हो वो ब्रॉड हो। ऐसा नहीं कि आप एक टाइप के क्वेश्चन में जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसके ऑप्शंस में आप लोग जो डिबेट करते हो नीट और वगैरह में, वैसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछना चाहते। वो चाहते हैं आप सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल बेसिक्स पता हो, बीडीएस लेवल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको पता हो, और डेंटल क्वेश्चंस प्लस मेडिकल साइड के क्वेश्चंस जो बेसिक्स हैं। मैं कहूँ आपको जो मैं कहूंगा, अगर एक फॉर एग्जांपल एक ट्यूबरकुलर अल्सर है, तो आप कहोगे कि ये तो जनरल सर्जरी का क्वेश्चन हो गया। बट अगर आपसे कोई उसका वुंड का मार्जिन पूछे, तो क्या आप उसको कहोगे कि ये जनरल सर्जरी का क्वेश्चन है इसलिए इट इज गोइंग टू बी टफ? नो। मतलब वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उनका ब्रॉड बेस ब्रॉड होगा, एंटायर डेंटल्स के सब्जेक्ट्स पूछेंगे, मेडिकल के भी पूछेंगे, बट इट विल बी सिंपल। सो दैट इज द थिंग, ये आपको पिक करना है, एंड दैट्स व्हाई, इसी वजह से, चाहे आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्लिनिक खोल के बैठे हो, आप अभी कुछ और कर रहे हो, नहीं कर, दिस इज डे वन। आप यहां से प्रिपेयर करो, ये सोच के कि वो जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, वो किसी नीट टॉपर के लिए भी और आपके लिए भी वो सिमिलर होने वाला है ना। इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो ऐसा नहीं होगा कि नीट टॉपर कुछ उसमें अलग बता देगा, आप कुछ अलग बताओगे, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन का जो लेवल ऐसा है ना, कि वो आपको सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा रहा है, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक बहुत अच्छा चांस है इस एग्जाम को क्रैक करने का। बाकी जो जीएस पार्ट है, इट प्लेज अ मेजर रोल, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस एग्जाम को और लेवल प्लेइंग फील्ड कर देता है। अगर आप, हम लोग इतने हजार, अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं, जीरो जो है, डे जीरो जो है ना, वो सबके लिए इक्वल है। आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर जब हम आगे जब डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सारे सवाल करके। मैं अब चाहूंगा सर कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट थोड़ा बदलेगा और आपसे डॉक्टर नितिन आपसे सवाल करेंगे। हाँ डॉक्टर नितिन, आप माइक आपके पास है एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सबसे पहले नववर्ष की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विक्रम सर और सभी को। तो विक्रम सर, मैं आपसे एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात करना चाहूंगा
कि जैसे Yes, कि sir. यूपीपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो मुझे आप ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में? क्या डिमार्केशन होता है डेंटल प्लस मेडिकल प्लस या फिर जनरल स्टडीज के क्वेश्चनों का? क्या ड्यूरेशन होता है एग्जामिनेशन का? और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, बेसिकली सर ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, बट अलग अलग सेट होते हैं। उसमें हमेशा जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 और 120 का उनका है। तो 30 क्वेश्चन वो पहले जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज एंड थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के। वो 30 क्वेश्चंस पहले होते हैं। 120 क्वेश्चंस आपके डेंटल की स्पेशलिटी के होते हैं, डेंटल प्लस मेडिकल बेसिकली। बट वो हैवीली टुवर्ड्स डेंटल साइड होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो रहेंगे। नेगेटिव आपको 2 घंटे का टाइम देंगे। वो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रहेगा कि आपको 2 घंटा ज्यादा लगेगा, ऑनेस्टली बताऊं अगर आपको, तो वो है। एंड तो आप समझ सकते हो कि फिर से जो चीज मैं कह रहा था कि यहाँ कोई आप बैठ के पेपर पे दिमाग लगा रहे हो, 5-5 मिनट सोच रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है सर। डॉक्टर तो साहब, इसका ये जो है, एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर ओएमआर बेस्ड होता है? ओएमआर बेस्ड रहेगा सर। ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि इसकी लास्ट ईयर की जैसे कि 150 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से यूआर की कट ऑफ क्या थी? मतलब एक कट ऑफ का एक आइडिया दीजिए सर। कितने क्वेश्चन यस, बच्चा अटेम्प्ट करके आए या फिर उसे आना चाहिए? यस सर, जैसे कट ऑफ की बात करूं सर, तो अगर आप देखो तो उन्होंने रिटर्न में लास्ट टाइम जैसे 10,000 का अप्रॉक्स बच्चों ने एग्जाम दिया था। उन्होंने 459, जहां तक मुझे याद है, 459 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था रिटर्न में। एंड उसके बाद उसी में से फिर उन्होंने 174 को उन्होंने ये कर लिया था। तो बेसिकली जो सर रिटर्न मार्क्स का जो है मेरिट, उसमें इस तरह से बनता है सर कि उन्होंने लास्ट टाइम 60% से अबव जिन्होंने स्कोर किया था, लाइक 150 में 90 क्वेश्चन जिन्होंने राइट किए थे, राइट क्वेश्चन मतलब उनको 90 क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन सही किए और उसमें के बाद 15 या 20 रॉन्ग कर दिए, तो वैसे नहीं। तो 90 क्वेश्चन का आप ये मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन कट ऑफ था। लेकिन अगर आप मेरिट की बात करो, तो जहां तक मैंने लोगों से बात की, मैंने अपने मार्क्स देखे ये सब चीजों से, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको समवेयर अबव 96 97 अगर आप हो, तो आप फाइनल मेरिट की तरफ आपके चांसेस स्ट्रांग है। ओके, ओके, ओके। डॉक्टर साहब, अब मुझे आप ये बताइए, क्या रिटन एग्जाम के बाद कोई सक्सेसिव स्टेजेस भी होती हैं इसकी? लाइक इंटरव्यू होता है या कुछ और भी चीजें होती हैं क्या फाइनल सिलेक्शन से पहले? यस सर, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू का जो उन्होंने वेटेज दिया हुआ है, लास्ट टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट इस साल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो 25% वेटेज इंटरव्यू को देंगे। पहली बार जब आप रिटन एग्जाम देते हो, तो वो एक लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकालते हैं। वो इस बार भी अराउंड वही आप मान के चलिए कि 450 के अराउंड, 420 430 उसके अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी होगी। उनको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं जितने भी जो फाइनल वैकेंसी है। जैसे इस साल 157 अगर वैकेंसी है, तो एक लास्ट में आपको एक 157 की आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते हैं आफ्टर इंटरव्यूज। ओके, ओके, ओके। तो बहुत अच्छा चांसेस है 500 में आना, लाइक अगर की जाए तो आ सकते हैं आप लोग। जी, यस, यस। जी। सो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जीएस में क्वालिफिकेशन और डेंटल पार्ट में क्वालिफिकेशन करना एक सेपरेटली क्वालिफाइंग होता है? लाइक मैंने एमपीपीएससी में देखा था, वहाँ पर अलग-अलग सेपरेटली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर क्या ऐसा ओवरऑल होता है, क्या सेपरेट है? सर यहाँ ओवरऑल है, यहाँ सेपरेट नहीं है। यहाँ आपको फाइनल जो लिस्ट है टोटल कंबाइन होके आपको आएगी। और यही इसी बात के लिए एक्चुअल में जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो 30 क्वेश्चंस हैं, उसको कई कैंडिडेट्स होंगे जो ये सिर्फ ये क्या सोचेंगे कि मैं सिर्फ डेंटल क्वालिफाई डेंटल से मैं उतने मार्क्स ले आऊंगा। इट इज वेरी टफ। और जीएस यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। राइट सर। सर, ऑफिशियली यूपीपीएससी सिलेबस रिलीज़ करता है या फिर पहले कभी 2023 में किया था क्या? या इस सिलेबस कहाँ मिलेगा हमें? सिलेबस जो सर उन्होंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं, ऑल डेंटल सब्जेक्ट्स, मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड जीएस। बेसिकली डेंटल साइड के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। मेडिकल साइड के वो कवर करेंगे, मेडिकल भी वो कवर करेंगे। और आपसे जनरल अवेयरनेस में, वो जनरल स्टडीज में आपसे कुछ चीजें पूछते हैं। जैसे यूपी बड़ा स्पेसिफिक है इस मामले में कि वो आपसे नेशनल लेवल के जीएस सब्जेक्ट्स पूछता है। जनरल नॉलेज भी उनके नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कभी वो यूपी के पूछ लेते हैं, अदरवाइज वही रहता है। और 2-3 क्वेश्चंस उनके मैथ्स के रहते हैं। ये बहुत ही उन्होंने एक पैटर्न बड़ा सेट सा रखा हुआ है, क्योंकि मैं जैसे जब मैंने पेपर एनालाइज किया था इस डिस्कशन के लिए, तो मैंने यही देखा कि 2019 और 2023 दोनों बार उन्होंने 22-22 क्वेश्चंस जीएस के पूछे थे। हम उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, और जीके उनके 5 और 6 क्वेश्चंस, और मैथ्स के 2 और 3 क्वेश्चंस। तो इस तरह से उनका एक पैटर्न बना हुआ राइट, राइट। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगा डॉक्टर अंकित सर को बोलना कि आगे का कंटिन्यू करें। है। यस। विक्रम जी, मेरा एक सिंपल सा डाउट है। अभी आपने बोला कि 150 क्वेश्चन है, 120 डेंटल है, 30 आपके जीएस के क्वेश्चन है। तो अगर और 90 के आसपास आपने कट ऑफ बताया, अगर मैं बहुत अच्छी तरह से डेंटल करके जाऊं और जीएस को बिल्कुल ही छोड़ दूं, क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत मुश्किल है सर। आप ये मतलब
एक जो एग्जाम का सर जो एक साइकी है, मतलब सबसे पहले हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमें ये समझना होता है कि वो किस टाइप के कैंडिडेट को वो चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए 30 क्वेश्चंस ऐड करना ये ऐसी चीज है जो वो चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रिपेयर करके आओ। अगर आप वो प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो तो एक तो पहली बात कि आप वो जो उनके जो जिस टाइप के कैंडिडेट वो चाह रहे हैं आप उसको थोड़ा सा वायलेट कर रहे हो। सेकेंडली, वो कितना फिजिकली पॉसिबल है कि आप 120 क्वेश्चंस में आप जो है अराउंड 100 क्वेश्चंस, मतलब मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 97 98 अगर आप रखना चाह रहे हो तो आपको कितना 105 क्वेश्चन आप राइट करो, उसके बाद 20 30 क्वेश्चन आप मतलब 15 नहीं, आप उससे भी मतलब मान के चलो आपकी Accuracy। 100 एक्यूरेसी आपकी बहुत बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आप जीएस जीके भी पढ़िए, डेंटल भी पढ़िए और एक बैलेंस बना के चलिए, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देगा। जीएस के जो क्वेश्चंस हैं इधर आप प्रिपेयर करोगे, अगर आप 10 क्वेश्चन का भी अगर आप लेके चल रहे हो लीवे, तो आप डेंटल में आपको वो इट विल सेव यू फ्रॉम सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन। सर मेरा एक सवाल है सर, इसी पे है कि सर देखिए मेरे जैसे एवरेज बच्चे, सर देखिए आप तो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है सर, तो आपके लिए तो चीजें बहुत आसान एक तरह से रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मेरे जैसे हैं जिनको बहुत एवरेज है। बट सर देखिए अब मेरे को ये लगता है कि एक स्टूडेंट को एक पुश चाहिए होता है, तो अगर वो ये चीज समझे कि सर अभी भी अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि सर देखिए यहाँ मिक्स ऑडियंस है, यहाँ फ्रेशर भी है सर, यहाँ पे 5 साल 10 साल क्लिनिक चलाने वाले बच्चे भी हैं, एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे भी सीनियर्स हैं। बट सर मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि सर वो लोग भी अगर चाहे तो वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो जीके का जो आप सब कह रहे हैं उसको भी बच्चे बहुत लाइटली आजकल ले रहे हैं, क्योंकि 30% है, 30 क्वेश्चन है, और ये सोचते हैं कि सर हम 120 में से डेंटल कर लेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर अंकित ने उठाया, मैं इसमें थोड़ा सा और आपको कहूंगा कि सर इसमें थोड़ा सा और रोशनी डालिए, क्योंकि सर जो जीके पार्ट है उसमें एटलीस्ट 10 से 15 नंबर भी लाए, तो अगर वो डेंटल में वो चीज गलत करते हैं तो उसको कवर अप कर सकते हैं। और एक्यूरेसी तो सर सब में नहीं होती सर, बहुत कम में होती है सर, एक्सेप्शनल जैसे आप हैं सर, लेकिन सब में नहीं हो सकती। तो एक बहुत लाजमी सवाल है, क्योंकि सर यहाँ पे सारे अकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं है, सबको एक एवरेज, क्योंकि बहुत टाइम से भी कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है जो क्लिनिक्स में है या फिर जो पोस्ट क्लिनिक, तो सर इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। सर डेफिनेटली पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। सर एक चीज मैं बताऊं, अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है अगर वो बहुत बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर उसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब वो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने बताया सेंटेंस वाइज क्वेश्चन अगर वो नहीं है, लंबे लंबे सेंटेंस बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत सिंपल है। आप बस ये करो, मेडिकल और डेंटल साइड का जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और बहुत डीप में जाके क्वेश्चन सॉल्व ना करो। आप एकदम दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछना चाह रहे, आपके वो चाह रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हो और आप उस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करो। एक तो ये बात हो गई सर, तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग से कोई भी स्टूडेंट ये निकाल दे कि मैं, चूंकि मैं एवरेज हूं, मेरे बीडीएस में 55% मार्क्स हैं, 50% मैं 70% वाले से कैसे कॉम्पीट करूंगा, वो आपसे आपको उनसे कम्पीट कराना ही नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि ये बुक है, आप जाके 8 घंटे 10 घंटे जाके बुक खोलो, सिंपल क्वेश्चंस है, पढ़ो, लगाते रहो क्वेश्चंस, याद करते रहो, उसको सॉल्व करते रहो, और जीएस को मत छोड़ो। वो आपसे ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीएस छोड़ेंगे, आपने अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया, मैंने शायद ग्रुप पे भी ये चीज देखी थी, जिसमें कि ये है कि आप अगर जीएस को सॉल्व नहीं कर, अगर आप जीएस पढ़ के नहीं गए, इंटरव्यू में जो पैनल होता है सर, वहां डेंटल के स्पेशलिस्ट 1 या 2 रहेंगे, बाकी जो पूरा पैनल होता है 4 से 5 लोग, वो होते हैं पीएससी के। और उनको इस बात से बहुत खुन्नस होती है, क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू के बारे में, 2 सक्सेसिव इंटरव्यू में मैंने देखा है ये चीज, मैंने नहीं, मतलब एक में एक्सपीरियंस सुना और एक में मैंने खुद फील किया। वो अगर आप डेंटल के स्मार्ट हो और आप अगर आपको जीएस नहीं आ रहा है, बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो वो आपको इंटरव्यू में आपको ऐसा मार्क्स क्या देंगे नोबडी नोस, वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो आपको ऐसा फील करा के भेजेंगे कि बच्चे, नो मैटर तुम्हारा डेंटल नॉलेज कितना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, वो इस तरह का फील दे के आपको भेजते हैं। दैट्स वाई ये जीएस का आपका कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप जीएस के लिए भी प्रिपेयर करके जाओ, और उसी में हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है, आप उसको पकड़ के चलो, आप है ना, वो आप उसको सॉल्व करो, प्रिपेयर करो, जो चीजें बताई जा रही हैं आप उतना करो। आप अलग से बहुत चीजें अगर करने के लिए जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और जीएस के विषय में तो मैं कहूंगा जीएस आप छोड़ो मत। विक्रम सर जी, वो जैसे तो हमारे आपने एक्सप्लेन, डॉक्टर अंकित है, वो जीएस पूरा संभाल लेंगे सर, उन्होंने एमपी में संभाला है, बाकी सब में संभाला है, तो वो तो सर इस पे पार लगवा देंगे। हाँ डॉक्टर अंकित, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं, विक्रम जी का सपोर्ट रहेगा ही ऑब्वियसली। 4 5 जने और हैं जो 2023 और 2019 बैच के सिलेक्टेड हैं, तो दे आर हेल्पिंग अस आउट। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है, इट्स नॉट अलोन एफर्ट, तो उन सबका भी एफर्ट रहता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है उनका, तो वो भी हमारे को इफेक्ट करता है। तो जैसे विक्रम जी आपने समझाया, मैं उससे एक चीज समझ में आया कि वो डेंटल के क्वेश्चन इजी लेवल पे रखते हैं, जिसकी वजह से सारा क्राउड जो होता है इक्विवेलेंट आ जाता है, और वो एज जो होती है वो एज जीएस से उठाता है बच्चा। तो ये बिल्कुल। है ना। तो जो आपने कहा, तो डेंटल सब्जेक्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमको करने चाहिए, क्योंकि डेंटल भी अपने आप में भी बहुत बड़ा है। यस सर,
डेंटल में सर जो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े उनको प्रिय है ना, जैसे रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है, ओरल सर्जरी हो गई, और पेरियो से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कम्युनिटी से उनके क्वेश्चंस, कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभार पीरो से पूछ लेते हैं, तो 4-5 तो हैं ही। बट मैं कहूंगा सर कि बेटर रहेगा अगर आप फाइनल ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी को मत छोड़ो। वो आपका सबसे सबसे पहले कोई चीज प्रिपेयर करो तो आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो। मतलब ओपैथ प्लस फाइनल ईयर, ये मेरे ख्याल से बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा। सर, ये ओरल पैथ में भी सर मैं एक ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा सर कि ओरल पैथ में इस टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। वो आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो वो आपको वहां नहीं लेके जाना चाह रहे। तो ओरल पैथ में भी क्वेश्चंस जो आपके पल्स से जो बड़े प्यारे से क्वेश्चंस बनते थे, है ना, वो विकहैम्स हैट फॉर एग्जांपल, ऐसी चीजें जो होती है, ग्रीन स्पैन लीजन सिंड्रोम, आपसे वो वहीं रखना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। तो आप ओरल पैथ को इंक्लूड करिए, ओरल मेडिसिन, बेसिकली ओरल मेडिसिन एंड ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन का ही वो एक्सटेंशन है बेसिकली। तो आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रांग रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा विक्रम जी, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि पेशेंट आया, उसका बीपी हार्ट रेट इतना है, इस टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं सर, बहुत रेयरली अगर एक आध कभी पूछा हो, बट जहां तक मेरे ध्यान में है सर, वो आपको नहीं भेजना चाहते उस लेन में कि आप उस तरफ करिए। तो जैसे आपने कहा कि हम टेस्ट सीरीज फॉलो करें और पल्स करें, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी चाहिए क्या हमें? सर मुझे लगता है अगर आप डेंटल मेडिकल की बात करें सर, तो जो आप पल्स है, पल्स के सिनॉप्सिस है, पल्स के एक्सप्लेनेशन हैं पीछे, एंड टेस्ट सीरीज है। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल इशू है, जिस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में वो नहीं घुसा के लेके जाते हैं, बट स्टिल अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो आप बुक रेफर कर सकते हो। बट उसको ये नहीं कि आप पल सॉल्व कर रहे हो और बगल में बुक लेके बैठे ही बैठे हो, वो आप मत करिएगा। वो आपका बहुत टाइम ले लेगा, फिर आप वो नीट वाले उसमें चले जाओगे, टाइम भी नहीं इस है एग्जाम मैंने से। देखा है कुछ बच्चे हैं जो मतलब बाउचर और ये सब उठा देते हैं कि सर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। तो वही मैं कहता हूँ, उनको डिफरेंस इज देयर कि आप रेट्रोग्रेड पढ़ाई करिए, जहां क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, देयर यू गो टू अपना कंसेप्ट रेडी कर लो, यूट्यूब देख लो उसका, रादर यस देन क्लासेस ले रहे हो। अभी कुछ बच्चे हैं दे वांट वीडियो लेक्चर्स, राइट। वो वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं। नहीं तो सर मैं ये बस आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेना उस एग्जाम के लिए, रादर देन यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये वाली एक फिनोमेना अपना करके, और इतना टाइम नहीं है कि वीडियो लेक्चर देखें, लाइक बिकॉज लाइक दिस इज वेरी, 5 से 6 महीने में एग्जाम करा देंगे वो। आपको क्या लगता है सर? 100% सर। आप मान के चलिए जून तक, अगर बहुत लेट हुआ, जून तक वो आपके रिटन एग्जाम लेके शायद आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट भी देते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज का, क्वाइट पॉसिबल। तो आपके पास उतना समय नहीं है। आप अगर घुसना चाहो, कोई अंत नहीं है, लेकिन आप घुसो मत उस तरफ। आप राइट। जनरल चीजें पढ़ो, सिंपल चीजें पढ़िए, खूब पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, और समय निकाल के जीएस के लिए पढ़िए। क्योंकि एक तो ये है कि जीएस बहुत समय से 10th के बाद बच्चों ने छुआ नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को वहां पे रटना नहीं है, थोड़ा एसिमिलेशन लगता है। आप कुछ पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपको थोड़ा उसमें डेंटल के कंपैरेटिवली आपको एक दो फैक्ट्स बड़े सिंपल होते हैं वो, बट वो आपके दिमाग में ठहरे, इसके लिए आपको समय तो देना होगा। आप सोचोगे अगर लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैं लेके कोई मुझे पीडीएफ चिपका दिया, मैं लाइन बाय लाइन रट रहा हूँ, वो हेल्प नहीं करेगा, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, तो वो फायदा नहीं है। सो बेटर है। ये हाँ, चीज विक्रम जी जो आपने कही ना, ये चीज सिमिलर एमपीपीएससी के कुछ बच्चों के साथ हुआ। वो जी रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे और लास्ट में आके कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, और फिर इवेंचुअली यही हुआ कि उनका मतलब आउटपुट इतना अच्छा नहीं आया। जी डॉक्टर विक्रम जी मैं ये इससे कहना चाहूंगा, हम वैसे भी क्यूरेटेड नोट्स रखे हैं अपने टेस्ट सीरीज में, जी जो बच्चों जी को मिलेगा, जो डॉक्टर विक्रम जी ने भी उसे हाँ कहा है, सारी चीजें कहा है, वो एकदम स्मूथ ऑफ पॉइंट है। वरना ऐसे मटेरियल को पोता रखने के लिए तो हम बहुत कुछ रख सकते थे, बट लाइक आपने ही कहा था, क्योंकि आप ही हमारे सारे मटेरियल एक्सपर्ट है यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं कह रहा था विक्रम जी, डिफरेंट स्टेट्स के भी पीवाईक्यूज होते हैं, तो हम लोगों ने अपने ऐप में वो सारे सारे स्टेट, केरला हो, तमिलनाडु हो, और आपका राजस्थान, हरियाणा, बिहार का लेटेस्ट पेपर, एमपी के पेपर, वो सब अरेंज किए। क्या उन पेपर्स की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए? यस सर, वो करिए। जो जैसे अगर आप ठीक ठाक समय, अगर आपने अगर ये डिसाइड किया मुझे एग्जाम देना है, पहले तो ये है कि आप 8-10 घंटे थोड़ा निकालो समय थोड़ा। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई पल्स वगैरह जो चीजें हैं वो तो पढ़िए, प्लस स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह सकता वो डायरेक्ट आ जाएंगे वहां से, बट अगर आप देखो तो जो यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या दूसरे स्टेट के क्वेश्चंस हैं, समवेयर जो है ना उनका पैटर्न, अगर आप हरियाणा को एक्सक्लूड कर दो, आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न रहेगा। तो अगर आपके पास, अगर आप समय दे पाओ, आप कर लो। टेस्ट सीरीज में वैसे भी चीजें कवर होने वाली हैं, वो आप जैसे चाहो ना चाहो वो आपको टेस्ट सीरीज में कवर करा दिया जाएगा। लेकिन अगर समय है तो आप वो भी करो, बट अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो दिमाग में लेके बैठना नहीं, अरे मैंने तो ओडिशा का सॉल्व नहीं किया, उसका सॉल्व नहीं किया, नहीं, वो नहीं। पल्स को एक फंडामेंटल बुक बनाइए आप अच्छे से,
एंड उसको पढ़िए, टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, जीएस के लिए जैसे गाइड किया जा रहा है आप जीएस के लिए उस हिसाब से समय निकाल के पढ़िए। विक्रम जी, जैसे अभी आपने जीएस के बारे में कहा और मेरे को पता चला है कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जीएस का 2019-2023 पेपर का। तो क्या उसमें आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे हमको स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। यस सर। बेसिकली सर जो यूपीपीएससी है उसके उसके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं आपसे नेशनल चीजों के बारे में, वो स्टेट स्पेसिफिक बहुत कम पूछते हैं। तो आपको बेसिकली नेशनल लेवल की चीजें पढ़नी है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी के लेवल पे चले जाना है, आपको ओवरऑल चीजें पढ़नी है। और मैंने उसमें कुछ जो उनके हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखो तो अगर आप पूरे जीएस को डिवाइड करो तो आपको जीएस में पहले बात कर रहा हूँ, जो जो कि आपके 30 में से 20-22 क्वेश्चन आपके जीएस से होने वाले हैं। तो अगर आप जीएस की बात करूं तो मैंने 7 अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया है कि वो कहां कहां से क्वेश्चंस पिक करते हैं। इन डिटेल जो है वो चीजें आपको शेयर की जाएंगी। आप अगर देखना चाहो तो ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें पूरा वो भरा हुआ है, और भी पेपर्स हैं। सो वो सारी आपको बता दी जाएंगी। मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो अगर हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री को पिक करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इन द सेंस जो 200 साल की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रही है उसको वो पिक करते हैं। वहां पे जो एविडेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे गांधी जी हैं, बोस हैं, अंबेडकर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय हैं, ऐसे लोग हैं। इनके जो स्लोगन्स हैं, इन्होंने जो है कौन सी बुक लिखी है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो हमारे 200 साल के फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे कुछ मूवमेंट्स हुए हैं 1920 के अराउंड जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, 1930 के अराउंड सिविल डिसोबीडियंस हुआ, 40 में भारत छोड़ो हुआ, क्विट इंडिया, ऐसे कुछ चौरी चौरा इंसिडेंट हुए थे। बंगाल का डिवीजन कब हुआ 1905 के अराउंड। ये कुछ हिस्टोरिकल ये है इंपॉर्टेंट है, फ्लैश पॉइंट्स हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को डिसाइड किया है। तो आपको गांधी जी कब वहां से रिटर्न हुए थे, आपको ये चीजें अगर आप सोचो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो आप ये करिए कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखिए, और उसके लिए आप गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बुक्स हैं उसके लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे जीएस के लिए एक बड़ी अच्छी बुक लगती है, वो है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो हम लोग बच्चों को अलग से लिख के भी दे देंगे कि कौन सी है वो। अगर आप हाँ सर, जी सर आप चलिए चलिए। जी सर, तो अगर आप जीएस के बारे में बात करें, कई बच्चों को होता है क्या कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या गूगल से नोट्स बना सकते हैं, कर सकते हो आप, वो भी बिल्कुल वैलिड है। आप टॉपिक का नाम लिखो, जैसे गूगल पे फॉर एग्जांपल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन किंग्स एंड रूलर्स, ऐसा करके, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे अगर आप डालोगे तो आपको चैट जीपीटी भी चीजें बता देगा। आप यूट्यूब पे डाल दोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो आपको 2-3 घंटे का एक पूरा आपको कोई वीडियो मिल जाएगा। बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे बुक के सामने मुझे पढ़ना है। तो ना उस केस में क्या होता है कि आप फिर एक बुक चाहते हो तो उसमें आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन को आप रेफर कर सकते हो, जहां पे कि वो सिलसिलेवार ढंग से आपको चीजें बता देते हैं, एक फ्लो में चीजें चलती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऐसी चीजें पूछते हैं। फिर अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 पे इंडिया में एक बड़ी चीज हुई है, तो आर्टिकल 370 कौन से स्टेट से रिलेटेड था। आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं, आपसे नहीं पूछते फंडामेंटल राइट्स के मुझे नाम बता दो आप कौन कौन सा है, नहीं वो नहीं पूछेंगे, कौन कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक। मतलब अगर आप ऐसे सोचो तो हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप चाहो, जो 6-7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसके 3-3 4-4 पेज के पीडीएफ आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन एक फ्लो में उसको समझने के लिए ना, आप उसको लास्ट के 2 महीने के लिए मत रखिएगा। ये पॉइंट है मेरा सारा कहने का। आप उसको पहले से पढ़िए, बुक से पढ़ लीजिए, इससे यूट्यूब से देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जो टेस्ट सीरीज के जो मटेरियल है जो अपना यहाँ से मिल रहा है अपने एक्सपर्ट गाइडेंस से, वो मटेरियल देखिए। बट उस पर टाइम दीजिए, उसको छोड़िए मत कि हाँ ये तो सर करा ही देंगे, यूट्यूब पे देख ही लेंगे। डोंट गो फॉर इट। तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर से कुछ चीजें पूछते हैं वो, रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ कौन सी होती है, और 2-3 किस्में पूछ लेंगे आपसे, राइस के कौन से 2-3 वैरायटी के बारे में बताइए। फिर यूपी स्पेसिफिक कुछ चीजें पूछेंगे आपसे कि यूपी में कितने मंडल हैं, कितने एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये पूछ लेंगे। फिर आपका यूपी में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, यूपी मतलब आपको आपको अपने स्टेट के बारे में जहाँ पे आप अभी ज्वाइन जैसे करते कुंभ हुआ है उसके बारे में पूछ सकते हैं। हैं, वो कुंभ के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि वो जो माघी पूर्णिमा की कौन सी वो डेट होती है जब आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चंस रेस किया हुआ है सर आपने, बहुत वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल टाइमली पूछा। तो ऐसी चीजें वो पूछते हैं आपसे, यूपी स्पेसिफिक पूछेंगे। साइंस उनके बड़े सिंपल होते हैं, साइंस में वो विटामिन, प्रोटीन, वैक्सीन, इन्फेक्शियस डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट्स, इसमें वो वैक्सीन जो आप कम्युनिटी में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, मतलब जो भी साइंस से रिलेटेड उतना ही चलता है उनका, बहुत ज्यादा वो आपसे साइंस में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊं, एक प्रतियोगिता दर्पण एक बुकलेट आती है, वो एनुअली जो है वो हर 6 महीने पे 6 महीने की वो निकालते हैं बुकलेट, जिसमें वो सारे इवेंट्स होते हैं। वो एक कंप्लीट पैकेज है वो। आप 6 महीने के वो 2 वॉल्यूम ले लो, 1 साल का।
लेकिन आपको उसमें कुछ हॉट टॉपिक्स है, वो सारे क्वेश्चंस मतलब पता चला आपने इधर से उधर पढ़ दिया नहीं, आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं करना है, आपको डेंटल के लिए करना है, तो आपको बहुत उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे कि अवार्ड्स, नोबेल प्राइज किसको मिला, स्पोर्ट्स में अभी रिसेंटली किसको मिला, क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप जो हुआ वुमेन का किसने जीता, उसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थी, अपने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में रिसेंटली कौन अपने चीफ गेस्ट थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा कोई मूवी ऐसी बनी हो हिस्टोरिक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी छावा एक मूवी आई थी, तो वो उसमें कौन से रूलर के बारे में था, तो औरंगजेब के बारे में, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपने पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा कुंभ तो है ही यूपी के स्टेट के हिसाब से। इसके अलावा यूपी स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो उनके ये होते हैं बजट, एनुअल बजट जो है वो कितने का है, और उसमें हेल्थ सेक्टर में क्या उन्होंने कोई नई स्कीम जारी की है, तो ये चीजें कुछ ऐसे हॉट, मतलब 10 चीजें ऐसे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप, अब ये मैं बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप गूगल करने जाओगे ना, तो आप ये क्वेश्चन ढूंढने जाते हो, फिर आप वो टैब्स खुलते रहते हैं 4 5 6, और फिर आप किसी अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप अगर बुक को पढ़ो, एक बार पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, सॉल्व करो, तो आपको क्या होता है कि वो रिवीजन में बहुत अच्छा रहता है, आपको इधर उधर फिर मोबाइल खोल के टाइम पास करने में करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और जैसे मैंने बताया 6 7 चीजें हैं जो जिसके डिटेल्स हम आपको दे देंगे, हम आपको रिटर्न जो कहाँ से पढ़ना है मैंने जैसे बताया। ल्यूसेंट की सर जो पूछ रहे थे, एक ग्रीन कलर की, पहले तो येलो बुकलेट होती थी सर, येलो कलर की, अब वो एक ग्रीन सा मैंने देखा, मैंने इसके लिए देखा था तो अमेजोन पे मुझे ग्रीन कलर का वो दिखा, तो आप वो वाला ले सकते हो। येलो वाला भी अच्छा है क्योंकि जीएस चेंज नहीं होता, स्टैटिक है, तो इट विल नॉट चेंज, तो आप वो भी ले सकते हो। प्लस प्रतियोगिता दर्पण, आप अपने आसपास किसी भी दुकान पे चले जाओ, प्रतियोगिता दर्पण मतलब वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स वहां से हो जाएगा, जीएस आपका ल्यूसेंट से हो जाएगा, बाकी कोच जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्वेश्चंस आपके हो ही रहे हैं, तो आप कवर कर लोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, बस आपको मेहनत करने की देर है। राइट राइट सर राइट। जैसे आपने टेस्ट सीरीज का कहा, तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए बच्चे को? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एग्जाम प्रिपेयर करते हो, तो हर वीक अगर आप एक टेस्ट दे सको, अभी से लेके एग्जाम तक, एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप जितना हो सके, जितने भी चैप्टर वाइज जो भी, जैसे जो मॉड्यूल हमारा बना हुआ है, उसमें आप हर वीक के अराउंड आपके क्वेश्चन ये रहेंगे, वीक या 2 वीक्स, इस पे जब आप पढ़ रहे हो, बेसिकली आप पहले तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर तुरंत तुरंत से टेस्ट ले लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा गैप पे 7 डेज 10 डेज पे अगर आपको मॉक दिए जा रहे हैं, वो करिए। फिर एग्जाम के 1 महीने पहले आप एनीवेज नई चीजें पढ़ के आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, तो बेसिकली आपको लास्ट मंथ में जो मॉक क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स आपको धड़ल्ले से दिए जाएंगे, मतलब आपको फटाफट क्वेश्चंस, आपको मॉक टेस्ट थोड़े बढ़ जाएंगे, तो बेसिकली वो 1 मंथ से पहले आपको प्रिपेयर हो जाना है, तो वही चीज है। तो आप शुरुआत में, अब डिपेंड करता है सर वो डेट वगैरह का क्या पड़ता है एग्जाम का, बट ये रहेगा अगर टेस्ट सीरीज अर्ली शुरू हो रही है तो टिल द एग्जाम से 1 महीने पहले तक आप ऑलमोस्ट हर सप्ताह 10 दिन पे एक मॉक दे दो आप। और इसी बात पे नित्यम सर आप कुछ कहते हैं टेस्ट सीरीज का हमेशा, कि टेस्ट सीरीज का वही मतलब है? हाँ डॉक्टर साहब, एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ, टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ बच्चे मैक्सिमम हो। अब 10-15 बच्चों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं, वहाँ आप रैंक 1 भी ला रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता सर। डॉक्टर नितिन अगर आप ये बोलेंगे तो बहुत बाहर गलत हो जाता है और लोग मतलब लाइक राइट राइट, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज में 900 प्लस कैंडिडेट्स हैव बीन एनरोल्ड टिल नाउ, तो काफी अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, पुश करने का पूरा पूरा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। बेस्ट प्लेटफॉर्म सर। राइट राइट। सर That's what एक I'm चीज मैं saying, ये like, पूछ रहा था कि एग्जाम में 150 क्वेश्चंस हैं, तो कितने अटेम्प्ट रखने चाहिए, गैस मार्किंग कितनी करनी चाहिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है? सर तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन के बारे में श्योर हो, 2 ऑप्शन के बारे में श्योर हो, तो आप यू गो फॉर इट, बट एट द सेम टाइम क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है ना, तो आपको ये भी बैरियर देखना है कि मुझे 95 प्लस करना है फाइनल मेरिट के लिए। तो अगर आप बिल्कुल पता चला आप 120 क्वेश्चंस लगा रहे हो और उसमें अगर आपका एक्यूरेसी का इशू हो गया, तो फिर आप मतलब आप सेफ जोन में नहीं रहोगे, तो बेटर है मेरे हिसाब से अगर 150 क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करो 130 अबव लगाओ। उसके लिए वो आप तभी लगा पाओगे जब आप दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाओगे, तब आपके पास वो जो ऑप्शंस जो हम लोग एलिमिनेट करते हैं वो तभी हो पाएगा। अगर अगर आप वो आपका ब्रॉड अगर बेस अगर आपने पूरा प्रिपेयर फैला के नहीं पढ़ा है, तो फिर वो 130 तक आप नहीं पहुंच पाओगे। कई स्टूडेंट्स होंगे जो 140 भी करेंगे क्योंकि वो पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से, तो ये चीज है 130 एंड अबव सर, 130 मिनिमम। विक्रम जी, बहुत बच्चे जो हैं, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, जैसे हम मेडिकल कॉलेज पहुंचते नहीं उससे पहले रैगिंग का डर सताता है ना, तो बच्चे अभी पूछने लग रहे हैं कि सर इंटरव्यू में कैसा होता है, तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप बता दें। हाँ छोटा सा जरूर सर, सर, इन वेरी वेरी ब्रीफ आप बता। वेरी ब्रीफ। बिल्कुल सर। इंटरव्यू के लिए वो डेज सेलेक्ट करते हैं आपको, फिर आपको बुलाते हैं, वो उस बैचेस में होते हैं, फिर आपको बड़े कायदे से आपको प्रयागराज में जो यूपीपीएससी का जो ऑफिस है वहां पे बुलाया जाता है, और फिर आप एक बड़ा सा हॉल होता है, मतलब 4 5 अलग अलग ये होती हैं टीम्स होती है, मतलब आप यमुना कह लो ग्रुप। सरस्वती
जी यमुना सरस्वती ब्लॉक्स रहते हैं। हाँ, ये बिल्डिंग के नाम है सर, और उसमें ऐसा होता है कि चैम्बर, एक एक ब्लॉक में 5-5 6-6 चैम्बर्स होते हैं। तो जो यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है वो एक ब्लॉक में वो बैठेंगे अपनी टीम के साथ, तो हर एक टीम में 6-7 लोग होंगे। तो एक एक जो यूपीपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो एक एक टीम को हेड करते हैं। तो एवरीडे वो 5-6 टीम होती है, और उसमें आप घुसोगे तो आपको एक हाफ सेमी सर्कुलर टेबल दिखेगा, जिसमें आपको 5 से 6 लोग बैठे हुए दिखेंगे, और वो हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो बीच में होते हैं वो बेसिकली यूपीपीएससी के जो मेंबर, बोर्ड मेंबर हैं, वो होते हैं। और बाकी डेंटल के स्पेशलिस्ट जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो वहां पे 3-4 लोग होंगे वो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन है वो। कोई आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, कोई आपकी एंजाइटी को चेक कर रहे हैं, कोई आप कैसे बात कर रहे हो उस पे उस वो चीज को आपके जज कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये एक सर्विस है जो आपको सीएचसी लेवल पे करना है, ये सुपर स्पेशलिटी सर्विस नहीं है। तो आप वहां पे अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, भाषा में अगर हिंदी, यूपी में आप हो तो आपको अच्छी हिंदी बोलनी है, वैसे शब्द यूज करिए जो कॉमन हो, मतलब आप उनको भी समझा पा रहे हो, और अगर वही लैंग्वेज अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को बोलोगे तो वो भी समझ आए। तो आपको बहुत टेक्निकल नहीं होना है इन सब, मतलब उनको ऐसा प्रतीत ना हो कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अर्बन है, ये पता नहीं वहां कैसे रहेगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा इंटरव्यू रिगार्डिंग के लिए। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, सिलेक्शन के बाद हम लोग पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी करेंगे, जिसमें आपको पूरी पूरी हेल्प रहेगी। डॉक्टर विक्रम से भी रहेंगे मॉक इंटरव्यूज में, तो उसमें आप बिल्कुल यस, बेफिक्र रहिए। यस, इंटरव्यूज वी विल देखिए, जो टेस्ट सीरीज है वो आपके रिटन टेस्ट तक वैलिड है, और जो भी इंटरव्यूज होंगे वी विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। उसके सारी चीजें डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। पर देखिए, एक सवाल हमेशा ये रहता है कि आप इंटरव्यू तक पहले पहुंचिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू में कि डेंटल के एस्पेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ डेंटल क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सर एक और सवाल बहुत बहुत रोचक सवाल होता है कि आप यूपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपकी क्लिनिक इतनी अच्छी चल रही है, या फिर आप अपने जिंदगी में ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको ये जॉब की जरूरत क्यों है। और सब कुछ ऐसे ऐसे बेसिक सवाल है, अगर आप उसको लेना चाहें। और जो डिफरेंस है डेंटल के क्वेश्चंस या फिर आउट ऑफ डेंटल, कितने क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं, सब थोड़ा सा अगर ब्रेक करके आप थोड़ा सा बता देते। जरूर सर, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। देखिए सर, मैं बताऊं, इंटरव्यू जो वो है, वो आपसे, जो आपका डेंटल नॉलेज है ना, बेसिकली आपसे वो रिटन में टेस्ट हो गया है। तो जो डेंटल के स्पेशलिस्ट हैं वो ऑब्वियसली आपसे कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, वो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप जो है ब्रशिंग टेक्निक कौन सी एडवाइस करते हो, या आप जो है फ्लोराइड अप्लाई करते हो क्या, कितने एज तक करते हो। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डेंटल के स्पेशलिस्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जो मेन उनका टेम्परामेंट, ये इंटरव्यू बेसिकली वो आपका टेम्परामेंट चेक करना चाह रहे हैं, और आप कितने इजीली आप उस जगह पे ज्वाइन करके सर्व कर पाओगे, वो वहां पे टेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि आप वहां पे जाओगे तो क्या आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर पाओगे। तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आप, मुझे लगता है हर इंसान के पास एक जवाब आपको अपने पॉजिटिव साइड से आपको पिक करना होगा। जब मैंने ये क्वेश्चन सोचा था तो मेरे अंदर से ये आवाज आई थी कि मैं गांव में रहा हूं और वहां पे चीजें मुश्किल हैं, है ना। और डॉक्टर्स एक तो अवेलेबल नहीं होते, अगर होते हैं तो झिझकते हैं, और वो भाषा नहीं होती, डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आते हैं, शायद वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज होती है कि आप उस बैकग्राउंड में जाके अपने आप को एक पेशेंट के तौर पे सोचिए। फिर आप सोचिए कि क्या डिमांड, आप उस डॉक्टर से क्या डिमांड कर रहे हो। तो आपसे जब ये पूछा जाए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि सर, मुझे इस बैकग्राउंड में सर्व करना पसंद है, और मैं ये इन्फॉर्म चॉइस मेरी है। ऐसा नहीं कि सर मैंने सुना है, क्योंकि मैंने ये जिया है, मैंने अपनी लाइफ में मैंने ये चीज जी है। इसीलिए एक ऐसे न्यूज आपको मिल जाते हैं कि इलाज के अभाव में इन्होंने दम तोड़ दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अगर ये सब चीजें आपको तकलीफ देती हैं, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ तकलीफ लेने से नहीं है। जब तक आप उसकी पार्ट ना बन जाओ, उस सिस्टम के पार्ट ना बन जाओ जहां पे आप इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकते हो सिस्टम को पॉजिटिवली, सो दैट अगर आपका थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन अगर इस सिस्टम को बेटर करने में हो सकता है, दैट्स तो वो आप इस सर्विस में आके ही कर सकते हो। सर ये मेडिकल पे कितना फोकस करना है हमें, और पहले मुझे सर आप ये बताइए कि मेडिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है या फिर सर अगर मैं कहूं तो मेडिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मेडिकल क्वेश्चंस पे फोकस करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप वो नीट और एम्स के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। वो मत करिए कि उनके क्वेश्चन बैंक खोल के बैठ जाओ, नहीं, वो क्वेश्चंस मत करिए। जो साइनॉप्सिस में पल्स के बेसिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करो। आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर चाहे वो सर्जरी का हो, फिर वो चाहे मेडिसिन का हो, मेडिसिन के क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सर्जरी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस, वुंड हीलिंग, अल्सर, ऐसी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। माइक्रो के वो आपसे कुछ बेसिक बहुत कॉमन बैक्टीरियोलॉजी में जाएंगे, कॉजेटिव एजेंट्स में, या स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में चले जाएंगे।
आपसे पैथोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, सबसे जो फंडामेंटल चीजें पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, केशियस नेक्रोसिस किसमें होता है, लिक्विफेक्शन वाले, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। वो कभी भी आपको एक स्लाइड दे के नहीं पूछेंगे कि आप बताओ क्या करना है। वो उधर नहीं अगर जाएंगे। सर कोई कटिंग क्वेश्चन भी होगा तो वो तो किसी को भी नहीं आएगा सर, इक्का दुक्का अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो यस देखिए मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा, अगर मेडिकल से बहुत टफ क्वेश्चन आता है और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो हमेशा ये समझिए कि सामने और भी जो बैठे हैं वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो यस डिफरेंस ये है। जी। राइट राइट। और तो सर मेरा एक सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्वेश्चंस को छोड़ना भी तो सीखना चाहिए बच्चों को। यस सर, अगर क्वेश्चन बिल्कुल, एक तो वैसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, या कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई। जब मुझे याद है एक स्मार्ट मटेरियल्स का क्वेश्चन आया था बहुत पहले एम्स के क्वेश्चन पे, वो फर्स्ट टाइम जब पहली बार लोगों ने एग्जाम दिया था तो वो उनको नहीं पता चला था। तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का भी मत लगाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आप उसको लेट इट गो। केमिकली कौन सा सीमेंट जो है बॉन्ड करता है टूथ को, अगर आप 2 तक पहुंच जा रहे हो, जीआईसी है या पॉलीकार्ब है, ऐसा ऐसे तो है, कॉम्पोजिट तो नहीं है, तब आप वहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को देख लो कि आप इस क्वेश्चन को कभी आपने पढ़ा है या इसके बारे में जानकारी है। ऑप्शंस पे उसके बाद जाओ, आपको अपने आप वो ऑप्शन दिख जाएगा, पहला उत्तर ये है, हटाओ। ऐसे हो जाता है। तो वो एलिमिनेशन का तरीका है। अंकित सर, नाउ हम Q&A खोल सकते हैं। डॉक्टर अंकित एंड डॉक्टर नितिन, दिस इज डॉक्टर मोहित एंड वी आर गोइंग टू ओपन द Q&A। बट एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको हम लोग दे देंगे जब भी आपको ऐड किया जाएगा, आपके एडमिन जैसे जैसे ऐड करेंगे कोर्स में, तो आप उसकी चिंता मत करिए। जो भी डाउट है, अगर एक लाइक आई एम अगेन सेइंग इट, don't make it impossible for us to start this Q&A section. Just raise your hand. Our admins will ask you to unmute and ask your question. और अपना क्वेश्चन एक गो में बात पूछ लीजिएगा, चैट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अदर बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। तो हम Q&A सेक्शन खोल रहे हैं, आप नहीं जस्ट वेट वेट। हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा बोलना कि पहले अपना हैंड रेस करें और डॉक्टर अंकित हाँ सर को एड्रेस करेंगे। उसके बाद जब हम हाँ डॉक्टर बोलेंगे, अंकित आपको बोलेंगे। हाँ जब आप हम बोलेंगे, जब अपने आप को चंदन, अनम्यूट करेगा और अपना क्वेश्चन पूछेगा। सीडीआर, अरविंद एंड सुमन, आप पूछ सकते हैं। Hi, sir. Good evening. Actually, this is Dr. Vaishali. I'm sorry, this is my father's profile. So, sir, I just have one question. But approximately exam का date कब तक है tentative? एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की डेट सर, मैम देखिए, वो एग्जाम की डेट जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, गवर्नमेंट के अपने वो होते हैं। तो आप उस पे आप ये एक टाइमलाइन मान के चलिए आप कि आपको मई जून, बहुत अगर देरी हुई तो मई जून तक वो आपको एग्जाम ले लेंगे आपका। Okay, okay, understood. Thank you. डॉक्टर ओप्पो सीपीएच, यस सर। सर माय क्वेश्चन इज कि सर मैंने जो यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराया था सर, वो एक्सपायर हो गया है। तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ सर? मतलब 5 साल का होता है, मैंने केजीएमयू से 2020 में पास आउट किया है सर, तो 5 इयर्स एक्सपायर हो गया है। मैंने अभी देखिए डॉक्टर, रिन्यू ऑनलाइन हो जाता है। आप बस यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे और तुरंत उसमें रिन्यू का ऑप्शन आता है, आप रिन्यू कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप रिन्यू कर लीजिए, है ना। और फॉर्म में वो कहीं नहीं मांग रहा है रजिस्ट्रेशन, लेकिन रिन्यू करने में कुछ नहीं आ रहा है। रिन्यू करके रखिए, क्योंकि सिलेक्शन होगा तब तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज रिन्यू कर लीजिए, बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन हो जाता है। कि सर विदाउट रिन्यू अभी नहीं मैं फिल कर सकती फॉर्म? फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म में कहीं मांग नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप फॉर्म फिल कर डॉक्टर सकते आप फॉर्म फिलअप कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, फॉर्म फिलअप कीजिए आप। बस ये है कि संग संग रिन्यू करवा लेना। ओके सर, एक डाउट और है सर। जैसे मैंने अभी कहीं ज्वाइन किया है वर्क करने के लिए सर, तो मैं वहाँ 10 से 2 वर्क करती हूँ सर। अभी रिसेंटली किसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो सर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं उस वर्क को छोड़ दूँ ये प्रिपरेशन करने के लिए, या कंटिन्यू करूँ साथ में सर? जैसे मेरा बच्चा भी है, उसको भी देखना है सर। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप वर्क को छोड़ दीजिए, आप पूरी तरह से फोकस करिए। यू आर अ केजीएमयू ग्रेजुएट, आपके अच्छे चांस रहते हैं। आप तैयारी अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ये एग्जाम सर ने जैसे बताया कि एक पूरी सेफ्टी दे देगी, सिक्योरिटी लाइफ टाइम। कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो क्लिनिक्स कर रहे हैं और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर जैसे बताया सर डॉक्टर अंकित सर ने कि मुश्किल है सर, मतलब वो आप दो दो नाव पे सवारी वाली बात है। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। अगर बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं जॉब छोड़ ही नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, आप फिर कंटिन्यू करो। फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लो कि आपको अपने टाइम्स में फिर वो 2-4 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, वो कर सकते हो। बट अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज आप वो छोड़ के सिंगल माइंडेड होके आप कर लो। 6-8 महीने की बात है, कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, सब कुछ प्लान कर सकते हो आप आगे फ्यूचर में। डॉक्टर श्रद्धा, सर मेरा क्वेश्चन विक्रम सर से था कि सर जब आपने प्रिपरेशन करी थी तो आपका मतलब डेली कैसा स्ट्रैटेजी रहता था डेली का, कि आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मतलब कहने का मतलब इनका दिन कितना का जीएस को पूरा दिन कैसे आप अपना डिवाइड करते? जब मैंने एग्जाम दी डॉक्टर, तो मैं बेसिकली मेरी एसआरशिप चल रही थी, तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड हो रहता था, बिकॉज 9 to 5 होते हो तो 8 घंटे होते थे। बट हाँ, ये होता था कि मैं वहां पे भी अपने टैब बुक्स जो चीजें होती थी वो मैं लेके बैठा होता था।
और अपने जोन में होता था वो आपको मतलब जब काम हो रहा है तो काम आप करो, बट इसके अलावा जो है कोशिश करो जितना समय निकल सकते हैं वीकेंड पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो, फुल टाइम दो, खूब पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रोड मैप है ना, प्लानिंग जो है वो आपकी पहले सबसे पहले आप वो करो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर आपको अंदर से ही आने लग जाएगा कि हाँ यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अब कोना पकड़ के मैं पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। तो वो आपको आ जाएगा। तो पहले आप प्लानिंग के हिसाब से क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद जहाँ पे भी जॉब में हो आप वहाँ टाइम निकालो मैक्सिमम, आप पढ़ो वैसे। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, बहुत हेक्टिक सा है, जा रहे हैं दिन भर में 5 6 7 8 पेशेंट आपसे करवाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसा काम है जो क्लरिकल है, आप छोड़ दो। मेरा यही सजेशन होगा अगर वही सर कोई एक बहुत क्वेश्चन, एक बच्चे का क्वेश्चन है सर। सर ही इज आस्किंग लाइक he has moved to a non clinical branch and he's a fresher, so how he can like actually is personally he messaged me like he is from other state, so like he has just opted a non clinical branch and has been out of touch of the study and everything like the clinical also and everything। तो सर अगर इस रिस्पेक्ट में वो अगर ये फॉर्म भर रहा है तो वो कैसे चीजों को मैनेज कर सकता है? सर ये डे जीरो है, हम लोगों ने शुरू में ये डिस्कशन किया था। आप बिल्कुल भी मत सोचो आप नॉन क्लिनिकल हो, आप कुछ और पढ़ाई शुरू कर दी हो, कुछ भी आपने बीडीएस किया है ना, तो आप मत सोचो। आपके लिए जो ग्राउंड है वही ग्राउंड जो रैंक 1 आएगा उसके लिए भी वही है ना, शायद आप ही रैंक 1 हो जाओ। तो ये बिल्कुल मत सोचो आप कौन सी ब्रांच में हो, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, डेंटिस्ट्री छोड़ दी, कुछ और कर रहे हो। डोंट बॉदर अबाउट ऑल सच थिंग्स, टाइम निकालिए और बस पढ़ाई पे लग जाइए। 1+AC। सर मेरा सर सवाल है कि सर एससी कैटेगरी की सर कट ऑफ क्या रही है सर पिछले सालों में, सर वो थोड़ा सा डिस्कस कर। नितिन सर इस पे अगर आप गाइड कर पाए, अगर एससी का क्या है कट ऑफ। मैंने देखिए वो लोग कट ऑफ निकालते नहीं है, और मोस्टली ये देखा गया है कि सीटें खाली रह जाती हैं एससी की, क्योंकि उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो कट ऑफ वो निकालते नहीं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया है मेरे ख्याल से यूपीपीएससी का कैटेगरी के लिए 30%, मिनिमम 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैं देखिए एक चीज अगर मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर विक्रम आप कुछ कह रहे हैं? मैं वही कह रहा था सर कि आप जो है ना कंपटीशन टफ रहेगा, और कैटेगरी का बिल्कुल भी दिमाग, आप जनरल सोच के करो प्रिपेयर, है ना। आप जनरल सोच के करो कि मुझे उतना स्कोर करना है 60-70%, आप उससे आपका जो होगा आप अपनी कैटेगरी में टॉप कर जाओगे। सो आप वो सोच के चलो कि मुझे उस लेवल का प्रिपरेशन करना है, करते करते आपका फिर अच्छा हो जाएगा। पहले से आप अगर अपने माइंड में ये लेके चलोगे मुझे कैटेगरी कट ऑफ क्लियर करना है, वो सही नहीं होगा। पर फिर उससे क्या होगा, आप कुछ और आपको लगा कि अच्छा ठीक है मुझे तो इतना ही करना है, तो मैं चलो इस साथ में ये भी कर लेता हूँ, मैं मैच भी खेल लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी देख लेता हूँ, वो फिर आपका डाइल्यूट हो जाएगा, फिर वो कट ऑफ भी क्रॉस नहीं होगा, है ना। तो ये सही बात चीज है, है। सही। जी थैंक यू सर, थैंक यू। रूहानी। Good evening, sir. I have few questions. So my first question is the preparation in comparison to NEET MDS. Okay, NEET MDS के comparatively, if you see, as we have discussed in detail about this aspect of UPPSC, the questions are going to be simple. NEET के आने के बाद, as we are all aware that questions are like the difficulty level is high, वो बहुत रैंडम हो, बहुत अगर ऐसा होगा कि वो शायद इजी क्वेश्चंस पूछें आपसे, क्वेश्चंस के लेवल पिक्टोरियल क्वेश्चंस पूछेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। यूपीपीएससी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल सच थिंग्स, दे विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। आप 19 में देख लो, 23 में देख लो, अभी ये फिर से पेपर होने वाला है, फिर उसमें भी देख लेना आप। दे आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम देयर वे ऑफ लुकिंग एट दिस पेपर, है ना। तो बट ये है कि नीट में वो आपसे जीएस की चीजें नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल डेंटल मेडिकल इन सब चीजों में आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसी में वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। नीट में क्या हो रहा है सर कि जो नए रिसर्चर्स, जो हम लोग पीजी में जो रिसर्च पढ़ते हैं, पेपर कोई नया रिसर्च आया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपके वहां से डेटा ले लेते हैं, या कोई नया डिवाइस आया उसकी फोटो डाल दी, तो वो उनका तरीका है पेपर को टफ करने का। लेकिन यूपीपीएससी जो है ना, वो आपको, मैंने कहा, एक ऐसा डेंटल स्टूडेंट जिसको बेसिक चीजें पता है अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ डेंटल एंड मेडिकल, बेसिक चीजें, एंड someone who is aware about his nation, his country's constitution, जनरल अवेयरनेस उसको हो, क्लाइमेट कैसा है हमारे देश का, जिस स्टेट में जॉब करने जा रहे हैं वहां कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये चीजें उनको, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए। तो सर मेरा डेफिनेटली ये सवाल करने का इसलिए एक्सपेक्ट था क्योंकि देखिए सबको हेलो ये सुनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्योंकि सर देखिए, क्योंकि ये लोग कई जगह नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मटेरियल लेके रखे हैं, तो मैंने इन्हें यही बताया कि वो सारा मटेरियल यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इसमें आपको हर चीज एक क्यूरेटेड यूपीपीएससी में जो जरूरत पड़ेगी वो हम दे रहे हैं, वो सारा मटेरियल हमने कलेक्ट करके आपके लिए रखा है। तो वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि दोनों का प्रिपरेशन बहुत अलग है। हाँ डॉक्टर अंकित, आप अनम्यूट कराइए किसी और से अगर कुछ सर अगर एग्जाम नीट एमडीएस के ड्यूरिंग आ रहा है या काउंसलिंग के बीच में आता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए उसमें उनका एक क्लियर कट है कि अगर आप
दे रहे हो। देखो आपको मैं बताऊं एक अपने टाइम की चीज, ये जो जॉब है ना मैम, ये ऐसी चीज है ना जिसकी सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे याद है जब मैं था तो केजीएमसी का आधा बैच जो है उन्होंने अपने, केजीएमसी आप समझ रहे हो कि वो किस लेवल की का कॉलेज है और वहाँ पे किस लेवल की रैंक के लोग आते हैं। तो जब बारी आई थी लोगों की पीजी छोड़ने की, तो जब कहा गया कि दोनों में से एक चूज करना है, तो लोगों ने पीजी छोड़ दी थी। बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नहीं छोड़ी थी, है ना। तो ये एस्पेक्ट आपको देखना होगा कि अभी के टाइम में बहुत अनसर्टेन हो गई हैं चीजें, है ना। जॉब क्राइसिस है, ये है वो है, प्लस आपको एक डिसेंट लिविंग के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी बेसिक तो चाहिए ही, प्लस 8th कमीशन का एक प्रोविजन आ रहा है जहाँ पे आपको सैलरी आपकी हाइक होगी, है ना। तो आप ये सोच के रखो कि आप प्रायोरिटी बनाओ, आप इस एग्जाम को प्रायोरिटी बनाओ, और एट द एंड वो चॉइस आपकी है कि आप पीजी में जाना चाहते हो या क्या। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कॉलेज या इन सब चीजों के लिए प्लान कर रहे हो, स्ट्रेट अवे लेवल से आप प्राइवेट पीजी छोड़ना पड़े छोड़ दो। एडमिशन लेने का के ड्यूरेशन में हो रहा है, आप मत लो एडमिशन, कम फॉर दिस जॉब 100%, चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो ऑल ओवर इंडिया। गवर्नमेंट में आपका चॉइस है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत पैशनेट हो तो आप उसको ले सकते हो। वो सिनेरियो होता है, फर्स्ट ईयर में आप हो तो शायद छुड़ा देंगे, सेकंड थर्ड ईयर में अगर आपकी थीसिस कंप्लीट हो रही है तो वो आपको कहेंगे कि आपको वो दे देंगे टाइम। ये सब चीजें हैं। अब तो यूपी गवर्नमेंट ने दिया है एक नया, एक लास्ट ईयर तो उन्होंने ये चीज कहा था कि आप जो है पीजी अगर आप कर रहे हो रिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर यू आर इन, आप छोड़ सकते हो, आप लीव ले सकते हो और आप बाद में आके ज्वाइन कर लो, आपको अलॉट कर देते हो पहले ही वो सीएचसी। सो इट इज वेरी सिक्योर कि आप, तो उस डायलेमा में आप मत फंसो कि मैं तब क्या होगा, है ना। तो आप अभी तो ये सोच के रखो एग्जाम होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। तो ठीक वो हमें बाद में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम लीव है। लेके एमडीएस भी कर पाए? यस यस यस, वो है। ऐसा नहीं कि आप जॉब पे हो और मतलब जॉब और एमडीएस जब आपका कोइंसाइड हो रहा होता है कि आप एमडीएस में हो, तो फिर इस साल उन्होंने प्रमुख सचिव जो थे पार्थ सारथी सिंह शर्मा, ही इज अ वेरी कंसिडरेट मैन, तो उन्होंने इस साल उन्होंने ये चीज कर दिया। अब वो एक बन गया कि वो ट्रेंड बन गया कि अब अगर ऐसा होगा फ्यूचर में भी, तो वो मोस्टली 99.9% आप मान के चलो वो आपको पीजी करने देंगे। तो वो आपके लिए सीएचसी सिक्योर्ड रहेगी कि हाँ आपने यहाँ ज्वाइन आके, आपको यहाँ यहाँ अलॉट हुआ है तो आप आइए पीजी करिए, पीजी के बाद आइए और आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सर एक क्वेश्चन है कि इज इट वर्थ इट फॉर स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स के हैं कि वो वहां से मूव होके दूसरी स्टेट में जॉब करें? 100%। अगर ये यूपी नहीं होता, मैं आपको नहीं कहता, यूपी दिल्ली ये दो ऐसी प्लेसेस हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ कई जगहों पे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूपी आना वर्थ इट है। आपको ना कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस कर रहा होता है, ना आपको लैंग्वेज के लिए कोई परेशान करता है, आपको अच्छी सैलरी देते हैं ये गवर्नमेंट। प्लस इसके अलावा अभी के यूपी के इस करंट सिनेरियो में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है विच इज नॉट लिवेबल, है ना, कि आपको ये नहीं है। आप थोड़े से डिस्टेंस पे आपको एक कोई बड़ा सिटी का कोई एक मेजर सिटी आपको मिल जाएगी। तो आप वो भी मत सोचो कि मेरे पीजी के ड्यूरेशन में, मेरे एसआरशिप की ड्यूरेशन में ये चीजें होती थी कि जब मेरे उधर महाराष्ट्र साइड के या कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर यूपी आके करना वर्थ है क्या, और फिर जब मैंने उनको सजेस्ट किया था उन्होंने ज्वाइन किया, एंड दे आर नॉट रिग्रेटिंग इट, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स हैं अभी के समय में पीजी के लिए यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट दोनों एग्जाम्स में तमिलनाडु से, जिनको लैंग्वेज के भी बहुत इश्यूज थे, वो आके भी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यूपी उस मामले में बहुत एक्सेप्टिंग है कि आपको, इट विल नॉट लेट यू डाउन, डोंट वरी। If somebody is lacking clinical experience due to preparation period. डॉक्टर साहब बस यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन, दूसरे स्टूडेंट्स को मौका दो वन बाय वन। Okay, sir. Okay. सुरभि, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि अगर डेंटल पल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली और कोचिंग के जो जीएस के नोट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए तो सफिशिएंट है, या फिर जैसे जीएस के लिए आप अलग अलग बुक्स बता रहे थे वो भी करना जरूरी है? जीएस का देखिए, जो मैंने सब बुक्स बताई है ना, वो आपका बेस बुक है ना। वो आप एज अ रेफरेंस बुक आप रखो। देखो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मटेरियल भी आप वो कर रहे हो, लेकिन हर चीज मटेरियल के तौर पे, जब तक कोई चीज आप बुक से नहीं पढ़ते हो तब तक आपको एसिमुलेशन में इशू होगा। आप क्योंकि देखो, आपको जो भी बुकलेट मिल रही है या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट हूबहू ऐसे उठ के नहीं आ जाएंगे। आपको एक बुक का बेस चाहिए होगा, है ना। आपको ये चीज समझना होगा, बुक का बेस होगा, इसका मतलब तो ये बुक कवर कैसे करे, है ना, ये सवाल होता है। आप बुक जल्दी से जल्दी ले लो, उसमें जो टॉपिक्स, जो हॉटस्पॉट टॉपिक्स हम बता रहे हैं उस पे आप फोकस करो, उसको पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, उसके बेस पे क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे। आपके नोट जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें आप उसी को रिवाइज करोगे, तो आपका फिर वो बनेगा कि अब आप एग्जाम में क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप यू विल बी एबल टू टैकल इट, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। आप सिर्फ कोई भी एग्जाम हो दुनिया में, सिर्फ टेस्ट सीरीज और सिर्फ वो जो हैंडआउट्स हैं उसके भरोसे आपको एक बेस बुक बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं करें आप 300-400 पन्ने की बेस बुक को आप पूरा का पूरा पढ़ना है। हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं कि वो कहाँ से क्वेश्चंस रेज होंगे। वो कुल मिला के लगभग 50 ऐसे एरियाज होंगे जो आपको पढ़ने हैं। बुक से पढ़ोगे आप तो क्या होगा कि वो अगर हैंडआउट में 4 पॉइंट्स हैं तो वहां 10 चीजें लिखी रहेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये ऐसा होता है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट।
और सर डेंटल पल्स अगर 2-3 बार रिवाइज किया तो वो सफिशिएंट है ना? मोर देन सफिशिएंट, वो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। अविनाश गांधी। Hello. क्वेश्चन पूछिए अपना। Good evening, sir. I have two main questions. My first question is कि क्योंकि डेंटल पल्स ऑलरेडी खुद इतना वास्ट है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें कि विद इन 6 मंथ्स हम ऑल थ्रू क्वेश्चंस कर पाए जो भी यूपीपीएससी में पूछे जाएंगे या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू या जो भी, बिकॉज बहुत दिन बाद अगर मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं बहुत दिन बाद अकेडमिक्स में फिर से ज्वाइन हुई, तो वो थोड़ा एक वही पूछना था कि कैसे इसको मैनिपुलेट करें या कैसे अपना स्टडी शेड्यूल ये करें कि हम इसको कवर अप कर सके विद इन 6 मंथ्स। मैम देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो है कि आपको सर्टेन आवर्स देने हैं, मतलब जैसे मैंने बताया 6-8 घंटे आपको निकालने होंगे। प्लस आप देखो कि पल्स में, जैसे आप पल्स सॉल्व करने के लिए जाते हो ना, तो कोई सब्जेक्ट जैसे है, तो कोई चैप्टर है, या तो आप पहले उसकी साइनॉप्सिस पढ़ते हो, है ना, आप पहले साइनॉप्सिस पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपको याद आती हैं। फिर आप उसके क्वेश्चंस जो जैसे मैंने बताया, फिल्टर करना है आपको क्वेश्चंस को, है ना, आपको लंबे क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। आपने सिनॉप्सिस पढ़ ली, फिर आप वो इनिशियल क्वेश्चंस पढ़ते हो, उसके अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चला यार सब कुछ भूल गए, आप उसका आंसर पढ़ दो। फिर सेकंड क्वेश्चन आप उसका आंसर पढ़ लो, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर पढ़ दो। तो आपका जो बेस है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेक्स्ट बुक, आप पल्स से आप वो चीज निकालो, आप पल्स का सिनॉप्सिस और जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत हद तक आपके इस एग्जाम के लिए जो भी थ्योरी का बेस चाहिए ना, वो आपको वो प्रोवाइड करा देगा। एक तो ये बात हो गई कि आप इस तरह से आप पढ़िए। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपने एक दिन पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप पढ़ते हो ना, तो जो आपने प्रीवियस डे जो पढ़ा था, उसके लिए एक टाइम निकाल लो, हाफ एन आवर या 1 घंटा आप निकाल लो कि मैंने जो पिछले दिन पढ़ा था वो मैं रश थ्रू एक बार में हो जाऊंगा, है ना। तो आपने एक रिवीजन जो है हर दिन 24 घंटे कहा जाता है साइंटिफिकली, 24 आवर्स में आप एक बार जो आपने पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो, तो देयर आर चांसेस कि वो रिटेन आपके ब्रेन में ज्यादा होगा। तो आप अगर आपने मान ली दिन भर जितना पढ़ा, मार्क किया, जितने पन्ने पढ़े, अगले नेक्स्ट डे भले वो आपको सब, अरे मैं तो भूल रही हूँ, ठीक है, वो नेक्स्ट रिवीजन जब आप वीकेंड पे करो या जब भी करो, जब आप फुल रिवीजन करोगे तो आपको फिर वो याद आने लगेगा। लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको एक ग्लैंस जरूर देना है जो आपने पिछले दिन पढ़ा है। आप टेस्ट सीरीज के लिए, आप टेस्ट सीरीज में जो चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पल्स से रहिए, पल्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज को लगाइए, समय मिलता है तो कभी कभी एज अ टेस्ट पेपर या एज अ मॉक पेपर ही आप वो स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। सर मेरा डाउट था कि डॉक्टर विक्रम से कि सर किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, एक दिन में हमें मतलब क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, कितने पेजेस हमें पल्स के खत्म करने हैं और कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट कि हमने इतने टाइम बाद ज्वाइन किया है और मतलब एकेडमिक्स में आए हैं, पढ़ना शुरू किया है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट राइट स्ट्रेट अवे, तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और कितनी पेजेस एक दिन में करें? देखिए, पेजेस का तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना याद आ रहा है ना। तो पेजेस का तो आप जब पढ़ोगे ना पल्स, आपको समझ में आप पता चला पेजेस टर्न हो रहे हैं लेकिन याद नहीं रह रहा, तो आपको एक अपनी स्पीड, जब आप पल्स शुरू करोगे ना, तो आपको एक अपनी स्पीड समझ में आ जाएगी कि हाँ, मुझे इतना इतने टाइम में इतने पेजेस मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। इट वेरीज ऑल्सो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो जो फाइनल ईयर में आपका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप वहां से शुरू करो। इट विल गिव यू अ फील गुड फैक्टर, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे जैसे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं आई कैन गो अहेड, है ना। तो आप टफ चीजें शुरू में मत करो, आप पहले जो आपके सबसे पसंद है वो सब्जेक्ट आप शुरू करो फाइनल ईयर के। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे पास हैंडीकैप होता है, लेकिन मेरे वाला जो होता है वो एक्चुअली इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो मैं फॉर्म नहीं भरूं या मैं ओटा मेंशन कर दूं और वो बाद में कंसिडर हो सकता है। देखिए, आप फॉर्म जब भरेंगे तो आप अपनी कैटेगरी भरिए, क्योंकि आप स्टेट के हैं, आपको मान लीजिए एसटी कैटेगरी है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरिए। डॉक्टर साहब इनका ये क्वेश्चन, सुनो, इनका क्वेश्चन, मेरी इनसे फोन पे बात हो चुकी है, मैं फिर से इनका क्वेश्चन रिपीट कर दूं। इनकी स्पीच की प्रॉब्लम है, स्पीच से पीएचडी कैटेगरी है, बट फॉर्म में स्पीच के रिलेटेड कुछ कैटेगरी मेंशन नहीं, वहां पर लो विजन है, आई थिंक लो कुछ ऐसे 4-5 उन्होंने, हाँ, पर वहां पर स्पीच के रिलेटेड कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये हैंडीकैप पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल अप करें या जनरल से, इसमें कोई किसी के व्यू, अदरवाइज तो मैंने इनको बोल दिया कि आप मेल करें तो आपको अच्छे से वो क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। ऑलरेडी का सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो हॉस्पिटल आपको इशू करता है, आपको वहां जाना है और जो देखिए जो फीस मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, आप अपने एडमिन से मांग लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसमें फीस मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा और उसमें हम इस ईयर की कैटेगरी को अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं समझ सकता हूँ आप इसमें बहुत कंफ्यूजिंग टाइम में है, तो आपको उसी हॉस्पिटल में जाके पूछना पड़ेगा कि इस सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आप बैठे हो कि नहीं। अगर नहीं बैठे हो तो आपको फिर जनरल अप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। डॉक्टर अंकित, ओके, डॉक्टर कंचन वोरा पूछिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास पल्स नहीं है, मेरे पास नीरज वाधवा है 2015 की पुरानी वाली, तो क्या वो काम करेगी या फिर मैं पल्स खरीद लूं? नहीं, नीरज वाधवान काम नहीं करेगी मैम, वो एआईपीजी के लिए स्पेसिफिक था। आप मत करिए, उसमें मत जाइए, छोड़ दीजिए उस बुक को। 54 जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है या फिर सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी होगा? प्री इंटरव्यू होता है,
आपको दोनों लैंग्वेज वो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उसी में से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रीडोमिनेटली हिंदी होती है। राइट राइट। अच्छा हर्ष आइकॉन सर ये लूसेंट के अलावा भी हम किसी चीज पे जीएस के लिए कंसीडर करेंगे या फिर सिर्फ लूसेंट ही आप बताएंगे? ल्यूसेंट इनफ है। ल्यूसेंट जो है ना बहुत कंसाइज बुक है, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें ऑलरेडी, तो आप किसी और पे मत जाइए। हर्ष आइकॉन जैसे मैंने पिछला एग्जाम दिया था तो उसमें जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आए थे उसमें एक भी मतलब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उसके लिए कहाँ से सर प्रिपेयर कर देखिए सकते हैं? सर ने वही पूरा लेक्चर में समझाया कि यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जो यूपी पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो जनरल पे पूछता है, इसीलिए उन्होंने ल्यूसेंट बुक बताई है। बाकी हम लोग जी पूरी तरह जी। से आपको गाइड कर देंगे, सर भी रहेंगे गाइड करने के लिए, तो आप टेंशन ना लीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज लाइक द प्रोफाइल ऑफ द जॉब की मतलब तो क्या रहता है उसमें, मतलब बेसिक डेंटिस्ट्री होती है कि क्या होता है उसमें? बेसिकली उसमें ऐसा है मैम कि आपको डेंटिस्ट्री ही करनी है। वहाँ पे आपको डेंटल चेयर प्रोवाइड की जाती है, स्टाफ एक डेंटल हाइजीनिस्ट आपके अंडर होता है, और आप डेंटिस्ट्री ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो वहाँ पे। और बाकी कुछ चीजें वो आपसे जनरल कई बार नॉर्मल रूटीन ओपीडी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको शायद वो करना पड़े, इमरजेंसी नहीं कराई जाती है। और आप डेंटल प्रीडोमिनेटली आप डेंटल प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे। राइट। सर फर्स्ट ईयर क्वेश्चंस आल्सो इम्पोर्टेंट? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी फर्स्ट बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट है। ईयर? फर्स्ट एनाटॉमी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी थोड़ा कम, बायोकेम सेकंड ईयर, पैथोमाइक्रो इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड ईयर मेडिसिन सर्जरी थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, जो आउटस्टेट स्टेट वाले मैं यूपी से मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ तो अभी तक तो यूपी जो मैंने नोटिफिकेशन उन लोग के साइट में देखा तो वो लोग अभी मतलब वो कुछ भी नहीं मतलब ऐसा कुछ डिक्लेयर किया जाए आउटसाइड वाले स्टेट वाले दे सकते हैं, ऐसा तो उन लोगों ने कुछ अभी तक बोला नहीं है। डॉक्टर साहब तो देखिए क्या आप, मैं फॉर्म फिलअप कर दूं क्या? अगर आपको कुछ बोलना डॉक्टर साहब मैं ये बोल रहा था आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो हम ग्रुप में इंटीमेट कर देंगे। फिलहाल आप फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके हाँ। ओके नेक्स्ट विजय नेक्स्ट वर्मा। सर लास्ट टाइम ना मैंने 23 का एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ था ना, मेरे आगे जो रोल नंबर था उसने कोई भी आंसर नहीं किया लेकिन उसका क्वालिफाइड हो गया। ऐसा कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। ये किसी को समझ ये नहीं दिस आया। वाज ये हमारे भी समझ में नहीं आया। यामिनी नहीं। हाँ पूछिए पूछिए जी जी। पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक एंड लवली सेशन सर, क्योंकि सर बहुत लोग कम ही इस टाइप की जो चीजें दे पाते हैं, स्पेशली विक्रम सर, नित्यम सर, मोहित सर एंड अंकित सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर क्लिनिक रन करता हूँ अपना, और सिंगल ही इंडिपेंडेंट मतलब फैमिली को भी लेके चलना होता है, तो सर क्या जो संडे को हमारे जो टेस्ट सीरीज आपने कंडक्ट की हुई है जी, वो उसका जो पर्टिकुलर टाइम होगा वो क्या होगा सर? देखिए डॉक्टर रहमान जी, जी डॉक्टर रहमान जी, टेस्ट जो है वो 9 AM पे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आपको जी जी 48 आवर्स मिलेंगे, आप उस बीच जी में कभी भी दे सकते हैं, और अच्छा आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट कुछ भी यूज जी करके दे सकते हैं। आप ठीक है अपने ठीक है कंफर्ट के हिसाब बेसिकली से डॉक्टर उसके अंकित मैं अंदर यहाँ एग्जाम करेक्ट करूंगा, डॉक्टर जी अंकित मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, 24 आवर्स के अंदर आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि देखिए अच्छा 48 आवर्स तक मत वेट करिए, क्योंकि ठीक है रियल टेस्ट होगा, रियल चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। मैं सर विक्रम सर से लास्ट क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। सर आपने ना वॉल्यूम एक्सप्लेन किया था पल्स का कि थर्ड वॉल्यूम या 6 to 7 वॉल्यूम एक रेंज आपने एक्सप्लेन की थी सर, तो सर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हम पल्स हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या हम मच मोर और हायर चीजों के लिए कनेक्ट रहे हैं? सिर्फ पल्स। ये था हाँ, कि ठीक है ठीक जैसे है। सर किसी एक संडे में 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक साथ हैं, तो सर ऐसे एग्जाम्स के लिए फिर कैसे स्ट्रेटेजी रहे, मतलब डॉक्टर साहब एक हफ्ते देखिए में 3 पेपर? जो एक डे में 3 सब्जेक्ट्स हमने रखे हुए हैं वो लो वैल्यू सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। वो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि विक्रम सर ने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वहां से आपको कवर करने हैं, और हम लोग भी वही पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको पूरा पूरा A to Z पढ़ने बैठना है। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर, आई थिंक सबके साथ हो गए हैं, तो आई जस्ट नीडेड वन फाइनल क्यूरीज फ्रॉम वन फाइनल वर्ड्स फ्रॉम एवरी एडमिन। इट वाज रियली नाइस डॉक्टर विक्रम की आप यहाँ आए और हमारे टाइम दिया, सब कुछ इट वाज रियली नाइस, बहुत इंटरेक्शन अच्छा था। मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि अपने रिएक्शंस आप तुरंत लाइव यहाँ पे दिखा दें, ताकि डॉक्टर विक्रम को भी लगे कि कितना अच्छा एक्सप्रेसिव था। डॉक्टर विक्रम, इट वाज रियली नाइस, आपने बच्चों से जुड़ के सारी चीजें बोली है। तो मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल ये करना चाहूंगा सर, आपके लास्ट वर्ड्स डे थिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड। फाइनल वर्ड सर। Sir, final words, I would say, make it a सर very लाइक आप देख रहे हैं सर, आप बस बच्चों के रिएक्शन देखिए सर, लाइक इट वाज सो अमेजिंग, लाइक इट वाज सर लाइक प्लीज टिल कंटिन्यू। द कोर ऑफ द थिंग, लाइक सर दिस आई पहली बात, सर दिस आई वेरी थैंकफुल सर, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सर। यस सर, आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो सर ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब हम लोग जब प्रिपेयर करते थे चीजों के लिए, देखते थे तो वो बिल्कुल अनाथ वाला हाल होता था, खुद ही देखते थे, खुद ही सॉल्व करते थे। तो ऐसा होता था बहुत वो कुछ कोचिंग होते थे जो बड़े महंगे और वो सब चीजें तो मैंने कभी करी नहीं, मैंने खुद से ही पढ़ा था। जब ये प्लेटफॉर्म दिखता है ना कि ये क्या है, ये तो ऐसी हैंड होल्डिंग है यहाँ पे कि आप किसी भी चीज के लिए इतने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्म्स आपको फिल करना मतलब ऐसे बता रहे, इतना इतना बेस्ट है ये। मतलब आप बहुत अच्छे फेज में हो आप लोग, जो कि आप लोगों को इतनी हैंड होल्डिंग मिल रही है ना। पहली तो बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, एग्जाम से रिलेटेड मैं यही कहूंगा कि
जो चीजें आपको बताई जा रही हैं बहुत वो निचोड़ है, हम लोग पेपर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, क्वालिफाई करते हैं एंड देन सब चीज फेस करके आपको एक ओवरऑल एक एप्टीट्यूड बताते, एक तरीका बताते हैं कि भाई ये ऐसे पढ़ना है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको फॉलो करिए। आप रैंडम अगर चीजों को पढ़ोगे अपने मन से, अपनी एक थ्योरी बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ब्रेन्स ऐसे लगे हुए हैं जो आपको ये चीज गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको करना क्या है। तो ये जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको ये ध्यान देना है कि मैं पढ़ूं, मतलब मैं अपने लाइफ से इतने दिन से मैं इतने घंटे निकाल लूं और उसमें मैं शिद्दत से पढ़ूं, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहूं, चीजें बहुत आती जाती रहती है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहूं, और ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो। शुरुआती पहले दिन से जो आपको एक अच्छी खासी सैलरी का एक क्वेश्चन मिल जाता है जिसपे आप अपना सब कुछ प्लान कर सकते हो। तो ये इस एग्जाम को इसलिए बहुत सीरियसली लीजिए और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट डे है, बहुत अच्छे से आप लोग इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़िए और गाइडेंस जो आपको जहाँ डाउट है आप पूछते रहिए अपने मेंटोर से, एडमिन्स हैं सारे, है ना, तो आप फॉलो इट। थैंक यू सो मच सर। राइट एक मैं इस पे कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, हौसलों से उड़ान होती है। तो डॉक्टर नित्य, कुछ फाइनल वर्ड आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप इस सेशन के बाद आप सभी लोगों को डायरेक्शंस मिल जाएँगी अपने-अपने कोर्स में ऐड करने की। तो जो-जो हम लोग ग्रुप में आपको डायरेक्शंस देंगे, आपको कोर्स में वही डायरेक्शन फॉलो करके ऐड होना है, ठीक है? और एक बात और यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और मैं बताना चाहता हूँ और भी पीएससीज़ लाइन्ड अप हैं, लाइक हरियाणा पीएससी भी आने ही वाला है और पंजाब पीएससी भी आने वाला है। तो वो प्रिपरेशन आपकी पंजाब के एस्पिरेंट अगर सुन रहे हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन वहाँ भी काम आएगी। ओके, बस मेरा यही आपसे कहना है कि हम डॉक्टर अंकित, आपके कुछ फाइनल वर्ड्स? लाइक आप तो काफी फेमस हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये न्यू ईयर नहीं है, इट्स न्यू यू। तो आप अपने लाइफ को न्यू यू बना लीजिए, ये एग्जाम निकाल लीजिए, बहुत सिक्योरिटी है इस जॉब में, तो आप अच्छी तरह मेहनत करिए, सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टेकिंग पार्ट। मैम, डॉक्टर होस्ट एंड दोस्त आपका डॉक्टर मोहित। लास्ट वर्ड मेरी तरफ से ये है कि देखिए, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, सबसे बड़ी बात ये समझिएगा। और अगर आप जिंदा हैं तो आप लड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या भी आप क्लिनिक कर रहे हैं, क्लिनिक नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ छोड़िए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने इस लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। बच्चे पूछते सर मेरा कलेक्टर होगा कि नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर मोहित का एक जवाब है, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, आप उस पर फोकस करिए और ये मत सोचिए सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट डाउट। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई टेस्ट सीरीज, कोई डॉक्टर मोहित, कोई डॉक्टर नितिन, कोई डॉक्टर अंकित, कोई डॉक्टर विक्रम आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर वो जज्बा है लड़ने की और अंत तक जाने की। ये बहुत जरूरी है और मेंटेन रखिए, और बाकी हम आपको अंतिम तक आपके साथ रहेंगे और आपको सेलेक्ट कराएंगे। हमने पहले भी बहुत सारे ऑफिसर्स करेक्ट किए हैं, यूपीपीएससी में भी हम ऑफिसर्स की लाइन लगाएंगे अपने टेस्ट सीरीज पे, तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। डॉक्टर नितिन, कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? बस मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बार-बार फोकस कर रहा हूँ, अब आपको डायरेक्शंस दी जाएँगी हमारे एप्लीकेशन में ऐड होने की, तो उन डायरेक्शंस को आप फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विक्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अंकित आपका भी, डॉक्टर नितिन आपका भी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Right. Recording stopped.